Hello, my beautiful people. Once again, welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing super awesome. Oh, guys, what to say? I mean, I'm so happy. I'm so glad to be back with filming videos, to be filming content for YouTube, which is like my favorite thing. I'm really sorry for being MIA from YouTube. I know you guys have been missing me, and you guys have been asking me questions like, where am I? Why am I not filming content? Is that so that since now that I've become married, I've been told not to film videos? Is that I'm not finding time? You had lots and lots of questions to ask, which I'll probably answer some of it as in when I find time in between the video. Sorry guys, I've got cough and cold. That's why like my voice is like this. I'm not keeping well. Had constant cough, mucus. Oh God, I mean, it's like, it feels like hell because your chest pains. You're constantly coughing. It's embarrassing. So I've come here at my parents' house, my mom's house, so that I can get my checkups done. And in between, I thought this is the best time when I'm not like going to office also, so it's the best time to be back and to be getting into the routine of filming videos. So how you guys are all doing? My love and wishes, like it's with you guys. I missed you a lot as much as you guys missed me. So what are we waiting for? Let's dive into the video and get started. So yeah guys, the big change that has happened is that now I'm married. Yay! So yeah, I'm happy. I'm celebrating my married life. And yes, I mean, everything has its shares of pros and cons, right? I mean, it's not always that glossy or that flowery which we see from the outset, but inside, I mean, there's a lot that takes place. So yeah, I mean, if I talk about my marriage, it has been a grand affair. Everyone loved it. All the functions, my wedding look. Guys, I mean, deciding my wedding look was again a task, as guys, right, that I'm very fussy about what I wear. I'm very particular about everything. So for my wedding, since it was a like big day, I had to like put in my more than 100% of mine to be able to bring out the look that I wanted for myself, and I'm glad that I was able to do that, right? You guys loved my wedding look. Keeping that apart, now that I'm married, a lot has changed. My house has changed. Very big thing. Like you can still be an irresponsible person when you're not married. But once you're married, you have to be a responsible person, right? So that happens. And when people around you are good, they are acceptable of you, then things become really easy. No one tells you that. I mean, when you get married, your environment changes. So for me, it's like a big change. I mean, people fit in very easily. There are people who fit in very easily. For me, it takes time. I'm not someone who fits in very easily. I like to be in my comfort place, and my room, my space has always been my comfort place. And see, I have started filming videos after marriage from my own like space only, because like this reminds me of everything. And there has been like a constant sense of nostalgia, like missing my home and missing my mom and parents and Luna and everybody, my sister. So that happens, right? I mean, I'm being very real, no sugar coated things. But जब लोग अच्छे होते हैं तो आप बहुत easily adjust कर लेते हो. Like I've got like great in-laws. My brother-in-law is amazing, and my husband, like I've dated him, and nothing has changed after marriage with him. He's still the same as he was earlier while dating. Of course, I mean, he has also become even more responsible, and yeah, that's there. So guys, uske alawa, like now that I'm back, I was here for a checkup, as I told you. So मैंने कुछ shopping भी करी है, and shopping is my therapy, guys, right? So मैंने सोचा
अपनी अपनी पोस्ट मैरिड लाइफ डिस्कस करने के साथ साथ मैं कुछ आपको दिखाना भी चाहूँ ताकि आपको भी इंटरेस्ट आए और आपके लिए कुछ यूजफुल निकल के आए इस वीडियो में से, राइट? सो द अदर डे आई वेंट टू रजौरी मार्केट. आई मीन आई लव द प्लेस. आई वेंट विद माई सिस्टर एंड आई शॉप्ड अ few things, few essentials which I would like to show to you guys. Tada! Not necessarily, not everything from Rajouri. I went to Rajouri, I went to like Subhash Nagar. So whenever I come here, I feel like getting all my work done because here are a few places, my go-to places. Like अभी भी मुझे वहाँ अगर मैं रहती हूँ तो कुछ चीज़ें मुझे शॉपिंग करनी होती है, मुझे कुछ essential लेना होता है, इवन मुझे सैलून विजिट करना होता है. I come back here. So yeah, so let's do unpacking, unboxing, and I can't wait to show it to you guys. So yeah guys, since you know I'm an office goer, I go to office on a daily basis. मेरी चप्पल guys, like I have a big struggle with my chappals. They get worn out very easily. मैं बहुत fast walk करती हूँ. रफ आई मीन जो रोड्स होती है रफ टेरेन भी होता है, रफ पैचेस होते हैं, स्टोनी एरियाज होते हैं, तो मैं हील्स भी पहनती हूँ. तो मेरे लिए बहुत स्ट्रगल है कि आई मीन दे डोंट लास्ट लॉन्ग इन दीज डेज. नो मैटर हाउ एक्सपेंसिव स्टफ यू बाय, लाइक they get worn out easily, you know, they get broken easily, and they have a very I mean short shelf life, so to say. So guys, मुझे चप्पल खरीदनी थी. So what did I buy? I wanted a basic black footwear, something that can cover my feet. So I bought this. I didn't want to invest much क्योंकि बहुत महंगी चप्पल आती है गाइस. सस्ता तो आजकल कुछ नहीं आता, आपको पता है. मैं लोकल भी नहीं खरीद सकती. For me comfort matters a lot when it comes to buying footwear. I can still buy local कपड़े, top and jeans and stuff, but चप्पल के मामले में मैं बहुत पर्टिकुलर, चप्पल और हैंड बैग्स. तो और मेरे पैर बहुत सेंसिटिव है, मार्क्स शू बाइट बहुत इजीली हो जाता है, तो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल बाइंग फुटवेयर्स. सो दीज आर द वंस दैट आई बॉट एंड दीज सो प्रिटी. गाइस मैंने बहुत मेहनत करी इनको लेने में, मुझे इजीली नहीं मिला. कहीं मुझे मिल रहा था तो उसका प्राइस बहुत ज़्यादा था, और कहीं प्राइस कम था तो मुझे वो स्टाइल पसंद नहीं आ रहा था. बट आई जस्ट लव दिस. ये मुझे इसलिए पसंद है, पार्शली कवर्स योर लाइक फीट एंड यू नो वेरी एलिगेंट. हील भी है, मुझे फ्लैट्स नहीं इतने पसंद है. छोटी सी हील भी है, छोटी सी, सो आप ऑफिस इसको कंफर्टेबली कैरी कर सकते हैं. एंड सिंस इट्स ब्लैक इट कैन गो विद every outfit, any outfit of yours, isn't that so? और guys ये मुझे सिर्फ 1250 रुपये या 1300 रुपये की पड़ी थी. So and it offers great comfort. It is amazing. It is amazing cushion which provides great support to your feet. And I think 1250 रुपये में it's not a bad deal, right? मैंने एक और चप्पल खरीदी है, और जो नेक्स्ट है वो है ये. I mean, this is also amazing, guys. I love neutral tones. These days, I don't know, I have developed great love for neutral beige tones. So I love these. I love the heels. I mean, इसका जो मल्टी कलर हील है ये बहुत ही प्यारा है. इसकी जो कलर मोनोटनी ऑफ कलर है इसके साथ it is going really well. It's not too like it doesn't have too much of color at the same time, but like the multicolor heel is serving all the purpose. I loved it, guys. Again, it offers great comfort. आप ये किसी भी पेस्टल शेड्स के कपड़ों के साथ इसको कैरी कर सकते हैं. और अगेन वेज हील्स है गाइस, सो इट इज़ एब्सोल्युटली कंफर्टेबल. ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, ये मुझे पड़ी आई थिंक समवेयर around like 1600. I mean I just loved it. Other than white, black, you need some, you know, neutral tones, right? And veg heels again are an absolute love. आप daily basis पे easily पहन सकते हैं, right, without any hassle. Guys, so there's this thing, I mean, I don't know if you'll be able to relate with this. I mean, there's this thing that you can't wear black for like certain period of time. And black, I mean, you know, black is a basic color which you will need with like top also, right? Black denim. If you can still do away with black dresses, but you can't do away with black denims. I mean, for certain tops, like for certain things, you will require, you know, black denims. But ठीक है, उसका alternative मैंने ढूंढा है. I'll try to avoid as much as I can, like for a couple of months, for 6 months or so. So for that very reason, I bought this grey denim. Ta-da!
गाइज ये ग्रे डेनिम बहुत इकोनॉमिकल है, पॉकेट फ्रेंडली है। ये मैंने खरीदा है क्यू से। गाइज मुझे जिसका भी नाम पता होगा, जिस भी मैंने कहाँ से लिया है, आई विल मेंशन इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स डाउन बिलो। प्लीज़ हमेशा उसको रीड किया करो। आई टेक अ लॉट ऑफ टाइम राइटिंग द डिस्क्रिप्शन पार्ट। सो गाइज मैंने ये डेनिम खरीदा है। मुझे 2 पसंद आ रही थी, उसमें से एक ये थी, वो स्ट्रेट फिट में थी। और जो ये है गाइज, ये स्लाइट यू नो लाइक बेल बॉटम लुक है हल्का सा, तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। आजकल बेल आई हैव ऑल द लव फॉर बेल बॉटम डेनिम्स एंड इट्स नॉट इवन टू मच ऑफ फ्लेयर, लिटिल बिट वेरी कंस्ट्रेन्ड बट येट it looked very elegant, very comfy fit, and this costed me just ₹800. Can you beat that, guys? An amazing comfort, amazing color, very good fabric, and it's long lasting. So अगर आपको denims लेना है at affordable price range which are comfortable also, you can visit Q. I mean, not promoting the brand, but just telling you guys, I'm like, it's my go-to thing. Most of my jeans are from Q. Yeah, that's there. Other than that, what I bought, कुछ मैंने 1-2 टॉप्स खरीदे हैं which I want to show to you guys. और guys, Sunday को I went out with my bae. You know who she is. She's Sadhna. So guys, उसके साथ मैं Sunday गई थी और Sunday भी मैं कुछ लेके आई. I don't know. I mean, good things. I mean, I don't attract good things. Good things attract me. I mean, I don't know, वो कहीं भी किसी कोने में होगा मुझे दिख जाएगा. I don't know how. I mean, I didn't go to Pacific Mall Subhash Nagar. Again, it's my go-to place, guys. I didn't go there like with any intention of buying stuff. I just went there with Sadhna to to make her buy a handbag and to just eat and go. But I don't know like how on earth I happened to see a few stuff and I bought it. If she was watching this, he'll kill me. He knows, like I don't know मैं कहाँ से क्या खरीद लाती हूँ, बट स्टिल गाइस मैंने बहुत इकोनॉमिकल शॉपिंग करी है एंड यू विल पैट माई बैक फॉर दिस. आप मुझे शाबाशी दोगे गाइस. और अगेन मैंने ब्रांड से ही लिया, मैंने नॉन ब्रांड कुछ नहीं लिया. सो गाइस दिस इज फ्रॉम मिलांज की कुर्तीज अच्छी होती है, साधना पहनती है और मुझे ये अच्छी लगी गाइस. सो मैंने इसको खरीद लिया एंड गेस व्हाट, ये मुझे 50% ऑफ में मिला, ओनली इन लाइक ₹500 अगेन. सो आप मुझे शाबाशी दोगे इस चीज़ के लिए ना. और गाइस समर्स के लिए, आई मीन द फैब्रिक इज सो ब्रीदेबल, लाइक सो कॉटन एंड फुल स्लीव से गाइस ये होता है आपको टैनिंग नहीं होती, राइट. सो मुझे मेट्रो से ट्रैवल करना होता है, मुझे वॉक करना होता है मेट्रो स्टेशन से टिल माई ऑफिस एंड लाइक बैक एंड फोर्थ रहता है. सो ये फुल स्लीव्स होता है, आप टैनिंग अवॉइड कर सकते हो. एंड नाउ लाइक समर्स, आई मीन दिल्ली की गर्मी भी बहुत ज़्यादा बुरी होती है, आपको पता है, इसकी स्किन गेट्स बर्न. सो I'm sorry, such tops come to your rescue. So guys यहाँ से टाई करने का है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा. इसका कलर भी बहुत अच्छा है, मॉव शेड है, बहुत प्यारा कलर है, नॉट टू ब्राइट ड्राई, वेरी सटल, वेरी एलिगेंट पीस, राइट. ओनली फॉर ₹500. द नेक्स्ट वन गाइज, मैं बहुत टाइम से चाह रही थी एक स्पेगेटी टॉप और लाइक एक स्पेगेटी इनर हो और ऊपर से टॉप हो, कुछ पोंचो टाइप, समथिंग लाइक दैट. तो मुझे फाइनली कुछ मिला अगेन एट 50% ऑफ. दिस इज अगेन फ्रॉम मिलांज गाइस. इसका कलर मुझे बहुत सुंदर लगा. दिस वाज द लास्ट पीस रिमेनिंग देयर और मेरी नज़र उस पर पड़ गई. आई डोंट नो हाउ, आई मीन दिस इज द लास्ट पीस. यूजुअली आई वेयर एक्सेस साइज, ये एस साइज है. सिंस इसका लूज ही है, आई मीन इसका जो पैटर्न है आप इसको लूज ही वेयर कर सकते हैं. सो मैंने इसको खरीद लिया गाइज. Poncho type. I mean, I just love the color, this lemon color. It's so summery, right? So summery, and this is this spaghetti, guys. I mean, I can already imagine myself in this and feeling hot. Guys, कभी कभी ना सिंपल कपड़े बहुत एलिगेंट लगते हैं और ऐसे कपड़े ना आप कहीं भी पहन सकते हैं. इट्स नॉट नेसेसरीली एन ऑफिस वेयर, यू कैन इवन वेयर इट टू लाइक a daytime like gathering when you're like catching up with your friends, going out for a movie and stuff. I mean, this is absolutely amazing, guys. Isn't that? I mean, so ये मुझे कितने का पड़ा guys? ये 59, ये मुझे 750 का पड़ा है after discount. Again, not a bad deal, right? So that was all, guys. यही सब मैंने यहाँ आके खरीदा है, मैंने यही खर्चा किया है और मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया है guys. That was all in the video, guys. I hope आपको ये वीडियो informative लगी हो, useful लगी हो, other than my chit chatting.
Guys, since I feel very close to you, you're not only my audience, you're like my family, right? And we can, since we connect with each other, that's why we are on the same page. You're supporting me, you're supporting my channel. So guys, one thing I've realized over a period of time and over a period of these like 2.5 months when I did not film, there has always been like a sense of lack, constant sense of lack. Everybody was telling me, like there also, Shiv ki family mein bhi, why are you not filming content? Why are you not uploading videos these days? Why have you become like so absent? And I was feeling so bad. And now वो जो एक fulfilling experience होता है ना, जो अंदर से you feel fulfilled. So now I am feeling fulfilled. This is something I cannot do away with. And I hope someday I make it big. Someday I shine with you guys, with all your love and support, and I start doing this full time because let me be very honest with you guys. I mean, the current job is, jobs really suck. I mean, and if your seniors are not good, I mean, they're not supportive, then it's a big task for you to fit in and for you to survive, to sail through. And someone like me who doesn't like take the orders, or who doesn't get dominated, who doesn't like to do feet licking, it gets even more difficult. So survival is a task, and here is a place like I feel I belong to. I feel nourished. I mean, it's a word, nourished. I mean, this YouTube filming and connecting with my audience and talking, I mean, gives me a hell lot of pleasure, hell lot of happiness, contentment. I mean, keeping aside other economical benefits or monetary things that people have in mind while filming content, for me it's sheer pleasure. It's very pleasing, and I know I'll go to bed at night with with a lot of happiness and with a sense of fulfillment. So that's there, guys, and thank you so much for supporting me, for listening to my blabber, my chit chat. I love you guys so much, and please be there, please hang in there, please support me, please share my YouTube videos with all your friends if you find it informative, if you're able to relate with me. Pour in your love. Sending you a big tight hug. All my blessings are with you, and yeah, I mean, take good care of yourself until I see you next time. Keep shining, keep working hard for your goals, and I love you guys. Bye bye. Hello my beautiful people, once again welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing super awesome. Guys, I'm very happy today that I'm filming this vlog for you guys. It's gonna be a really fun vlog. It's not around fashion, not around anything. So guys, इस वीडियो में मैं आपको किसी स्पेशल से मिलवाना चाहती हूँ. दो वो मेरी छोटी बहन की तरह है, एंड शी इज़ रियली नाइस, शी इज़ रियली क्यूट. दे आर एक्चुअली 3 sisters, और उनमें से जो एक है वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है. मैं उनको काफ़ी टाइम से जानती हूँ और वो मेरी वीडियो में भी पहले आई है. Some of you recently asked me questions about them कि आप उनको कैसे जानते हैं, since they're doing really well in the YouTube industry. So guys, मैंने सोचा क्यों ना मैं उनके साथ एक व्लॉग करूं, क्योंकि अभी आई एम एट माई पेरेंट्स हाउस. तो मैंने सोचा लेट्स कैच अप विद देम, डू अ फन व्लॉग, गो आउट, चिल, spend some good time. So I'm going to go out with them, and I'm going to ask questions, right, related to the YouTube thing, and it's going to be really amazing video. हम काफ़ी टाइम बाद मिलेंगे after my marriage. So I want you guys to stay tuned till the end, to enjoy this video, to sit back, relax, and see how it goes, and yeah, be with us, and I'm really sure you're gonna enjoy this vlog. So stay tuned till the end, guys. I'm gonna see you very very soon. अभी मुझे बस ready होना है, मुझे उनके घर जाना है, और फिर वहाँ से we're gonna go out, and yeah, we'll have fun. Bye. I'll see you on the other side. Hi. आप आधा घंटा बोल के 3 घंटा तक गए. पसीने गर्मी इतनी ज़्यादा. हाँ, अंदर जाओ.
गाइस हमारी 2 बजे की बात हुई थी और 3 बज गए हैं। 4 बजने वाला है अब। नहीं 4 कहाँ, कितना बज रहा है? नहीं 4 3 अब 4 बज जाएगा, अभी रहेगा 4। देखो गाइस, पहचाना आपने कौन है ये, किसके बारे में मैं बात कर रही थी? अभी थोड़ा सा धुंधली आ रही है वीडियो, अभी पता चल जाएगा कौन है। अच्छा है, सस्पेंस क्रिएट हो रहा है। तो हाय गाइस, मैंने आज आपको अब इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि मैं किसी स्पेशल बंदे से मिलने जा रही हूँ और आप लोग भी उनको जानते हैं, तो आई थिंक अब आपने पहचान ही लिया होगा। दे आर थापा सिस्टर्स। वन ऑफ द सिस्टर्स इज स्टिल मिसिंग। सो आज मैं बहुत टाइम बाद, आई थिंक शादी के बाद ही मैं ऐसे मिल रही हूँ, राइट? नहीं तो हम लोग ऐसे मिले ही नहीं हैं। सो बहुत टाइम बाद हम लोगों ने कैचअप किया, तो हमने सोचा चलो वीडियो बनाई जाए। और मेरी बहुत सारी ऑडियंस है जो नहीं जानते कि मैं उनको कैसे जानती हूँ और हम एक दूसरे को कैसे जानते हैं और हम मतलब क्या रिलेशन है, फ्रेंड्स है, क्या है। सो मैंने सोचा चलो एक क्विक Q&A राउंड करते हैं ताकि आप लोगों को भी पता चले, क्लैरिटी मिले कि लाइक हाउ वी आर कनेक्टेड विद ईच अदर। और सोचा कि एक फन ब्लॉग, एक वीडियो भी हो जाए, हम बाहर जाएंगे, विल स्पेंड सम गुड टाइम। चाय भी एंड सो चाय भी आ गई है गाइस। सो चाय के बिना हर चीज़ अधूरी है। आंटी है, नमस्ते आंटी। सो जी बढ़िया। और पता है मम्मी क्या, कल आपका मैं लाजपत नगर वाला ब्लॉग देखी थी। मम्मी वो क्या बोलता है इसलिए कहा ना सृष्टि आके जुकाम कोल्ड हो जाए। हाँ जी, थैंक यू आंटी। सो दैट्स द स्वीटनेस ऑफ अ मदर। सो या गाइस, चाय पीते पीते हम इसको ब्लॉग करेंगे एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। और पता है कल मम्मी बोली रही थी कि मुझे ना बहुत अच्छी लगती है आरती, मुझे ना बहुत अच्छी लगती है। इधर तू ना बोलने का तरीका हाँ, तेरे बोलने का तरीका कितना अच्छा है, मुझे ना बहुत अच्छी लगती है। मम्मी क्या बोलती है, पता है क्या बोलती है मम्मी? बोलती मुझे ना इंग्लिश बोलनी नहीं आती, मुझे कितना अच्छा बोलती है, कितनी अच्छी अच्छी है। थैंक यू आंटी, आज थोड़ा गले की बैंड बजी पड़ी। तो चाय ले लो, चाय पीते पीते आपको Q&A करो। कॉफी में नहीं, चाय में दाल आंटी चाय में दाल भैया। ये बहुत सही रहेगा, चाय में आंटी। आंटी बैठी है ना आप भी? अच्छा, बब्बू लो ना चाय, सृष्टि नहीं पीती है। ओके। सो बब्बू, मैं आपके मुंह से भी सुनना चाहूँगी कि हम कि जैसे कि मैंने बोला कि शी इज़ जस्ट लाइक माई लिटिल सिस्टर। सो बहुत छोटी है मुझसे एंड दैट शी इज़ डूइंग रियली वेल इन हर लाइफ। एंड जिस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी फैमिली की और बाहर भी शी इज़ वर्किंग और प्रोफेशनली भी द वे शी इज़ कैरिंग हर सेल्फ, कंडक्टिंग हर सेल्फ इज़ एक्सेप्शनली वेल। सो कभी कभी होता है ना, आप अपने छोटों से भी सीखते हो। सो शी इज़ वन सच गर्ल एंड शी इज़ अ स्वीट हार्ट। तो चलिए इनके मुँह से भी सुनते हैं कि ये मुझे कैसे जानती है और हम लोग कैसे मिले। इट्स बिन आई थिंक बहुत साल हो गए हम एक दूसरे को जानते हैं। 9-10 ईयर्स शायद, उससे भी ज़्यादा ही हो गए। हाँ। तो मैं बताती हूँ हम कैसे मिले। एक्चुअली हमारे ऐसे कोई डायरेक्ट लिंक नहीं था, ना हम साथ पढ़े हैं। एज आरती दीदी टोल्ड यू ऑल दैट, मतलब हमारा बहुत एज डिफरेंस भी है। हाँ। और मतलब वी आर नॉट लाइक कलीग्स या क्लासमेट्स या ऐसे कि स्कूल टाइम फ्रेंड्स हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो मेरी जो नेबर है साधना दीदी, जो आप इनके ब्लॉग्स में बहुत देखते होंगे, इनकी फ्रेंड जो हमारे वीडियो में कभी नहीं आती है, इतना शर्माती है, इनके वीडियो में आ जाती है क्योंकि ये जबरदस्ती लाती है। कुछ काम नहीं चल सकता ना उसका काम मेरे पे डिपेंड करता है, मेरा काम उस पर डिपेंड करता है। मैं शॉपिंग करनी है, खाना है, पीना है। सो हाँ, शी हैज़ टू बी देयर। तो साधना दीदी जो है वो मेरी नेबर है और उनके थ्रू ही, मतलब साधना दीदी जब स्कूल में पढ़ती थी, फिर कॉलेज में, ट्यूशन में, तो फिर आती थी, उनके घर आती थी। तो ऐसे ही पहले मैं साधना दीदी से ट्यूशन पढ़ती थी जब मैं बहुत छोटी थी। फिर ऐसे ही मतलब कभी जिक्र हो जाता है ना कि एक फ्रेंड का, तो आरती दीदी आती रहती, तो हम देखते रहते थे। तो मतलब ऐसे ही हमारी फिर ना बातचीत हो गई नॉर्मली। फिर जैसे आरती दीदी को कभी कहीं जाना था, तो मुझे याद है वो बहुत पहले मैं शायद स्कूल में थी, हम वो कहीं पैसे भी नहीं गए थे, आपको कुछ शॉपिंग करना था। तो उसके बाद ऐसे हुआ, फिर आरती दीदी साधना दीदी वाले में वो चल सकते हो, ठीक है। तो दैट्स हाउ वी गॉट अलोंग कि मतलब फिर हम ऐसे ही बाहर जाने लगे। फिर कभी जैसे मार्केट जाना है आसपास, और घर भी आसपास ही है, मतलब इतना पास भी नहीं है, बट हाँ जो भी इंटरेक्शन हुआ वो ऐसे ही हुआ। एंड देन उसके बाद फिर धीरे धीरे फिर ये है कि कॉमन इंटरेस्ट कभी आ जाता है, तो लाइक आफ्टर आई ऑल्सो प्रोफेशनली डेवलप, तो फिर मैंने आरती दी से भी कुछ गाइडेंस ली, उनसे कुछ पूछा। एंड हाँ,
फिर ऐसे ही करते करते थोड़ी फ्रेंडशिप हो गई। अब फिर कभी भी बाहर जाना होता है तो चले जाते हैं। फिर एक यूट्यूब वाला इंटरेस्ट भी, जिसे इनको ये मतलब हमसे पहले से वीडियोस बनाती हैं, काफ़ी पहले से, तो इनको मतलब काफ़ी वो सब इंटरेस्ट है और ये बहुत क्रिएटिव है और इनका फैशन सेंस बहुत अच्छा है। तो मैं तो ये पूछी थी ये कैसे करूँ, ये कैसे जैसे मुझे कहीं जाना है तो मैं पूछूंगी मैं कौन से कपड़े पहन के जाऊँ। आज भी जो कपड़े मैं पूछ रही थी मैं ये पहन लूँ। तो मतलब हाँ, दैट्स हाउ वी मेट। Yeah, that's great. Quite a long introduction. मेरे आंसर लंबे ही होते हैं। बट एक चीज जो बब्बू ने मिस कर दी वो मैं बताऊंगी, हम क्यों कनेक्ट हुए, बिकॉज वी बोथ आर टॉकेटिव. हाँ, राइट. We can talk endlessly. Sadhna is comparatively like, she's quiet, she doesn't talk much. She does, but not as much as we do, right? So, and I'm a patient listener also. So Babbu used to tell me a lot of stories, college की, school की, so I used to listen to her patiently. So धीरे धीरे जब आप किसी के साथ, I mean, you don't need a reason, right, to be able to connect with anyone. It's just the vibes that match. So as simple as that कि हमारी vibes match कर गई. And she's Srishti, guys, Thapa sisters में. So she is studying in school. आपको पता ही चल गया होगा देख के. And she is very cute. और this is also like so commendable कि स्कूल के साथ साथ ये बच्चे like vlog कर रही है और I'm sorry, I was sore throat. उसके साथ साथ सारी चीज़ें मैनेज करना, ब्लॉगिंग भी, अपनी सिस्टर को भी हेल्प करना, अपनी पढ़ाई को भी अच्छे से देखना, वो कैसे कर रहे हैं ये बहुत ही कमेंडेबल है. और छोटे छोटे जो बच्चे हैं जो वीडियोस देखते हैं उनको भी एक लेसन लेना चाहिए कि कैसे वो अपने टाइम को टू दी ऑप्टिमम यूटिलाइज कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं अपनी लाइफ में. तो सृष्टि आप कैसे मैनेज करते हैं, बताना चाहोगे? तो पहले तो मैं स्कूल जाती हूँ, फिर स्कूल का टाइम होता है 9 से. तो मैं तो 4 बजे घर आती हूँ. अरे बाप रे. हाँ, हमारा लेट का है. अच्छा. जैसे बाकी बच्चों का होता है मतलब सुबह 8 बजे. 7 बजे नहीं होता स्कूल? नहीं, 9 बजे का है. अच्छा, 9 बजे. 9 से 4 बजे फिर मैं घर आती हूँ. हाँ. फिर थोड़ा बहुत रेस्ट करके, मतलब फिर जैसे बब्बू करके रख देती है थोड़ा बहुत एडिट, फिर उसको बाद में मैं कर देती हूँ. हाँ. फिर बब्बू भी मतलब बना ही लेती है, बब्बू भी कर लेती है, फिर उसको मतलब थोड़ा बहुत मैं कर लेती हूँ. फिर मैनेज हो जाता है कि यानी फिर ऐसे नहीं होता कि पढ़ाई रह गई या फिर ये भी रह गया, दोनों हो जाता है. दोनों मैनेज हो जाते हैं. कभी ऐसे नहीं तो बहुत थक जाते हो, चिड़चिड़ापन आ जाता है कि टाइम नहीं मिल पा रहा है. जैसे संडे कभी मन करता है कि सिर्फ सो जाए, कुछ ना करे, सिर्फ रेस्ट करे, क्योंकि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती है. मेरे साथ भी मुझे फील होता है कि यू जस्ट डोंट वांट टू डू एनीथिंग, यू जस्ट वांट टू सिट रिलैक्स्ड एंड जस्ट स्लीप एंड ईट एंड रिपीट. तो कभी ऐसे होता है कि बहुत टायर्ड हो जाते हो? हमारे जैसे बहुत गैप आ गया था, तो हम कर ही नहीं पाते थे. मतलब ये भी ऑफिस जा रहे थे, हम जाए तो हो ही नहीं पाता. पर अब हम जाके थोड़ा बहुत हमने सोचा यस करना ही पड़ेगा एकदम. अच्छा. नहीं, कभी कभी ऐसा फेज आ जाता है ना, मतलब यू डोंट फील लाइक गेटिंग बैक टू द वर्क ना, मतलब क्योंकि आप बाकी चीज़ों में इतना उलझे हुए होते हो दैट यू डोंट फील लाइक एक एडिशनल एक चीज़ पिकअप कर लो. तो वो चल रही है, यू शुड पे अटेंशन टू इट, बट समटाइम्स ऑर्गेनिकली नहीं आता है, वो फोर्सबली आता है. तो हम उस टाइम पे ना वी जस्ट डोंट थिंक मच, हम उसको थोड़ा वैसे ही रखते हैं, रेस्ट मोड पे रखते थे. हाँ. तो बाबू तुम्हारे लिए भी बहुत डिफिकल्ट होता होगा घर देखना, जॉब और फिर उसके साथ यूट्यूब और फिर उसकी सारी डायनेमिक समझना और उसको लाइक योर चैनल इज मोनेटाइज एंड सो मेनी पीपल वॉच इट. तो लाइक आप कैसे उसको, जो आपकी फ्रीक्वेंसी रहती है ब्लॉग्स की जो आप हर वीक डालते हो, तो कैसे मैनेज करते हो कि ऑफिस के साथ साथ लाइक घर आके वीडियो बनाना, डेली कंटेंट शूट कैसे करते हो, या हफ्ते में 2 बार भी अगर डालते हो तो फिर कंटेंट कैसे लेके आते हो, हु एडिट्स इट मोस्ट इम्पोर्टेंटली? एक्सप्रेशन से आपको पता ही चल गया तो होगा. हर बार सृष्टि एडिट करती है? हाँ, तो बेसिकली हाउ वी डू आवर वीडियोस रूटीनली. पहले क्या था ना कि हम जो भी वीडियोस बना रहे थे तो वी वर डूइंग इट ऑन अ रेगुलर बेसिस, बिकॉज उस टाइम लॉकडाउन था. हमारे चैनल को ये भी वर्क फ्रॉम होम कर रही थी. एक्चुअली द चैनल That was I mean, मेरे लिए तो it was a blessing in disguise. I could do a lot many things which I cannot do now post COVID. तो वही था, हमारे चैनल ऑलमोस्ट स्टार्ट हुए हुए 2 साल हो गए कंप्लीट. वी हैव कंप्लीटेड 2 years. तो तब ऐसा था कि कंप्लीट लॉकडाउन था, तो मतलब यू डिड नॉट हैड सो मच ऑफ थिंग ऑन योर हेड कि नहीं भाग भाग के ऑफिस भी जाना है, देन जिम भी जाना है. उस टाइम सब स्टैंड स्टिल था, मतलब exactly. यू कैन आइदर बी एट locked in your house. तो उस टाइम वी यूज्ड टू डू डेली वीडियोस, मतलब हाँ. क्योंकि सब कंट्रीब्यूट भी करते थे बिकॉज एवरीबडी वाज एट होम. तो उस टाइम ऐसे हो जाता था, मतलब यू हैड टाइम फॉर एडिटिंग, यू हैड टाइम टू थिंक कि हम क्या नया करें. और उस टाइम ये था, उस टाइम दिमाग में बहुत अच्छा चलता था बिकॉज बाहर जाने के लिए होता नहीं था. तो आइडियाज़ खुद ही
स्ट्राइक करते थे कि भाई कोई चैलेंज वीडियो कर लिया, कभी नॉट टू लाफ चैलेंज कर लिया, कभी कोई प्रैंक कर लिया, कभी जोलो चिप मंगा लिया, ऐसे कुछ भी करते थे. एंड सडनली व्हेन द लॉकडाउन, सेकेंड लॉकडाउन वाज लिफ्ट अप, तो उसके बाद लाइक मतलब वी चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ आवर व्लॉग्स. तो तब हम ऑल्टरनेट करने लग गए. तो ठीक है, वो मैनेज हो रहा था बिकॉज वर्क फ्रॉम होम में भी थोड़ा बहुत तो प्रेशर आ जाता है. देन आई स्विच्ड माई जॉब एंड फिर वो है कि उसमें मुझे डेली जाना होता था ऑफिस. तो तब मेरा ये रहता था सैटरडे संडे ऑफ रहता था. तो आई यूज टू मेक सैटरडे संडे वीडियोज़. बाकी 5 दिन में नहीं बना पाती थी बिकॉज बहुत मुश्किल हो जाता है. और जो लोग वीडियोज़ देखते हैं मतलब उनको लगता है कि like it's just picking up the camera and having fun, but it's not like that. उसके लिए भी टाइम निकालने के लिए you need to think a lot because वही अगर कोई बंदा 5 दिन काम कर रहा है to make video on those extra 2 days, that is also a work, right? So it's not like that you're working 5 days a week, we are working 7 days a week. It's like With we no are on rest. job. हाँ, मतलब एक आपका जो permanent job है, since I'm working like along with the YouTube thing, तो एक जॉब तो चलता ही रहता है बट उसके साथ एडिशनल जॉब है वो भी चल रहा है. हाँ. तो वो वैसा है. तो बट या अब है जैसे वी हैव पिक्ड अप. तो बीच में हमारा क्या हुआ था ना, बहुत गैप आ गया था 10-12 दिन क्योंकि बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल पा रहा था. इवन दो वर्क फ्रॉम होम अब दूसरी जॉब में शिफ्ट हो चुका है बट स्टिल यू नो समटाइम्स यू डोंट नो कि ये दोबारा से उस चीज़ को कैसे पहले जैसा बनाया जाए. क्योंकि उतना एंगेजिंग भी आपको वीडियो रखना है, कंटेंट भी आपको सोचना है. यू कैन नॉट शो योर होम एवरी डे एंड यू कैन नॉट मतलब मेक रूटीन वीडियोस बिकॉज एवरीबडी इज डूइंग दिस. मतलब आजकल तो हर कोई बना रहा है. तो वही है कि आप थोड़ा हमने मतलब ये सोचा है लाइक ऑल्दो ये हमारे लिए थोड़ा अपने आप को पुश करने जैसा है बट ये थॉट कि हाँ अब हम थोड़ा ट्रैवल का भी करेंगे. थोड़ा वी विल ट्राई एंड एक्सप्लोर एवरीथिंग. जैसे मैंने पीछे ना कोई हेयर केयर का वीडियो बनाया था. नॉट लाइक योर्स, आपका तो काफ़ी होता है यू टेल अबाउट प्रोडक्ट्स एंड लॉट मोर थिंग्स. बट वहाँ मैंने ऐसे ही बताया था कि मैंने एक हेयर टॉनिक बनाया था घर पे. तो उसमें देयर वर लॉट ऑफ कमेंट्स कि हमें बताओ ये कैसे बनाया. तो आई थिंक पीपल आर लॉट मोर इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स ऑल्सो. तो मतलब ऐसा है कि हमें ट्राई करना चाहिए. तो जैसे मैंने ट्रैवल का सोचा ऑल्दो अभी ऐसे कहीं गई नहीं मैं ट्रैवल करके. बट अगर आरती जी प्लान बनाएगी तो मैं तो और कब से बोल रही हूँ, मैं बनाती नहीं है प्लान. मैं प्लान बनाती हूँ गाइस. नाउ शी इज लाइक साधना दीदी भी चले आप भी चलो. हाउ कैन आई गारंटी अबाउट हर लाइक यू नो इफ आई हैव टाइम शी डजंट हैव टाइम, व्हेन शी हैज टाइम आई डोंट हैव टाइम. So it's like 3 of us coming together like पता नहीं वो कभी लिखा हुआ है and I don't know when will we plan that. So I am तो ready. अब let's see हमारा plan कब materialize होता है. Okay, that's great. So पप्पू कभी ऐसे भी होता like आप अपनी जॉब भी कर रहे हो और उसमें भी you know you have to be like very competitive. So कभी ऐसे नहीं लगता है कि सिर्फ जॉब पे फोकस करती हो और यूट्यूब जाने देती हो या यूट्यूब पे फोकस करती हो बिकॉज यू नो यूट्यूब पे एक मार्क क्रिएट करना इट्स नॉट ईजी राइट. एंड व्हेन इट एक्चुअली कम्स टू यू इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू. तो ऐसे होता है कि यू नो जॉब वॉब छोड़ देते हैं और सिर्फ इसी पे फोकस करते हैं. सो वाई यू आर सेलिंग इन 2 boats एंड व्हाट आर योर लॉन्ग टर्म प्लान्स कि कब सिर्फ यूट्यूब ही आपने सोचा है कि सिर्फ आप यूट्यूब पे ही फोकस करोगे यू विल लीव अदर थिंग्स बिहाइंड. तो ऐसा कुछ है आपके थॉट प्रोसेस या आपके माइंड में? सी एज ऑफ नाउ मतलब our channel is doing good. I'm not saying it's doing great, but yes, it's doing good. तो बहुत से लोग suggest करते हैं कि मतलब like you leave your job completely and focus this because it will help you, you know, grow your channel Exactly. better. You'll be able to put in more effort, more time, right. more energy. But कहीं ना कहीं I am थोड़ा बहुत I am like not very comfortable doing that because चैनल के डायनामिक्स ना हमेशा चेंज होते रहते हैं. तो यू डोंट नो व्हाट वुड बी पॉपुलर द नेक्स्ट मोमेंट. ठीक है, अभी इंस्टाग्राम पे एक रील चल रही है वो आ रहा है ऐसे वाला लड़का डांस करता है. तो यू डोंट नो कि पब्लिक को कौन सा कंटेंट पसंद आ जाए. कभी कभी वो बिल्कुल क्रिंज भी पसंद कर लेते हैं बिकॉज सम पीपल आर मेकिंग क्रिंज एंड पीपल आर लाइकिंग इट. सम पीपल आर अब्यूजिंग एंड पीपल आर लाइकिंग इट. बट इट डजंट मीन हम अपना डायनामिक्स वैसे बना रहे हैं. तो इसीलिए मुझे लगता है कि प्रोफेशनली मैं इसीलिए अभी जॉब कर रही हूँ लाइक यू सेड की वायर सेलिंग इन नो बोट. सो द like to put it in simple words I think कि I have put in lot efforts in my studies. Right. तो like I have put in मतलब much efforts in my studies. तो मुझे ऐसा लगता है कि if I'm getting a decent and the job I'm doing is very good, तो मुझे वहाँ से अच्छा recognition मिल रहा है. That's why I'm able to put my heart to it. It's not like that यार मैं
मतलब बहुत ऐसे बेकार ऐसे थक हार के मुझे नौकरी करनी पड़ रही है, जस्ट लाइक कि वो है। तो जॉब मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे रहा है, इट इज़ मेकिंग मी इंडिपेंडेंट एंड ऑल्सो कॉन्फिडेंट कि हाँ अगर मैं यूट्यूब में अगर मुझे कुछ एक्सपेंसिव लेना, मतलब अगर यूट्यूब के लिए मुझे कल को कुछ स्पेंड भी करना है तो आई कैन डू दैट कॉन्फिडेंटली बिकॉज आई हैव दैट बैकअप। Yeah, so I have that backup. It's not like that I'm completely dependent on one source. तो YouTube for me it's not like कि सिर्फ monetize है इसलिए उसको आगे बढ़ाने के लिए कर लो. I feel that I have put in efforts तो मेरा job भी चलता रहेगा. And long term में मतलब like you ask like if you have any plans to like completely switch to YouTube, तो I would say not at the moment. But हाँ I would really wish कि मेरे चैनल पे भी 1 million हो जाए बिकॉज वो हर किसी का ड्रीम होता है. चाहे किसी के चैनल पे 10 व्यूअर्स भी है ना तो उसके दिमाग में भी वो ड्रीम रहेगा कि यार मुझे भी एक मतलब ना 1 million जाना है या ऐसा कुछ करना है, इस क्रिएटर के जैसा बनना है. तो आई ऑल्सो हैव दैट zeal to you know to move that forward, but I will do that along with my job for now. And even like if ever I would like to switch to YouTube completely, so that then it would be after I achieve something big professionally. So वो आप मेरी आगे की जर्नी में देखोगे अगर हो पाया तो टच वुड. Touch wood, of course. Wish her all the very best. I mean, the way she is going and the way she is handling everything, मतलब it's like praiseworthy, guys. अच्छा तो मैं दोनों से पूछती हूँ. Okay. So guys, I'm also working, right? मुझसे बहुत सारे फ्रेंड्स पूछते हैं आप इनको कैसे जानते हो, आप इनकी वीडियो में आए हो या आप इनके साथ वीडियो बना रहे हो. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है you know कि someone who is a friend to me and people know them and somehow you know they get very happy when they get to know that I'm connected to them. They are popular faces now. So guys, आपको कभी आसपास लोग ऐसे मिलते हैं ऑफिस में या बाहर की हम तो आपके ब्लॉग्स देखते हैं और हम आपको जानते हैं और सृष्टि से आप तो भी बहुत छोटे हो और इतनी कम एज में मतलब फेमस हो जाना लाइक टू बिकम अ नोन फेस. सो कैसे मतलब हाउ डू यू डील विद इट और कैसी फीलिंग आती है जब आपको बोला जाता है. तो लेट्स स्टार्ट विद यू. मेरे को तो जैसे मैं स्कूल में जाती हूँ, मुझे जैसे लंच वगैरह होता है छोटे छोटे बच्चे आते हैं, दीदी मैंने आपको वहाँ देखा है, दीदी मैंने आपको वहाँ देखा है. अच्छा. तो बस उनसे बात करती तो मतलब ऐसे बोलते हैं आप बहुत अच्छे लगते हो, बनाते हुए ऐसे ऐसे बोलते हैं. स्कूल हर बार ही आते हैं वही बार सेम बच्चे वही आते रहेंगे. अच्छा. वही बोलते रहेंगे. अच्छा. कई बार जैसे सीनियर्स होते हैं वो भी आके बोलते हैं हमने तुम्हारे देखे हैं ब्लॉग्स. हाँ, और टीचर्स भी बोलते हैं मैंने तुम्हारा वो देखा है, तो वो भी पूछते हैं. तो आप लोग खुद नहीं बताते हो बट वो खुद ही देखते हैं यूट्यूब पे जब उनको पता चलता है. दोस्त होते हैं वो जाकर बातें फैला देते बिल्कुल ही. उनको तो मना करते वो फिर भी नहीं सुनते, वो तो जाकर हर किसी को बता देंगे. अच्छा. एक बार मैंने सुना था आप लोग आ रहे थे घर वापस विच यू वर इन अ रिक्शा और समथिंग और फिर किसी ने बोला हम आपको जानते हैं, हमने आपकी वीडियो देखी है. क्योंकि आई थिंक मे बी सम टाइम बैक आई डोंट रिमेंबर, शायद आपको भी याद ना हो. तो आपको बप्पू आपको पहचानते हो लोग या कभी ऐसा होता है? बिकॉज यू आई एम श्योर यू डोंट टॉक अबाउट इट राइट. आई तो जस्ट इन ऑफिस ऑल्सो आई जस्ट गो सिंपली मतलब ऐसे कुछ हो नहीं किया हुआ है. बट मतलब रिसेंटली वन ऑफ माई कलीग्स फाउंड आउट अबाउट माई चैनल. ही वाज लाइक अरे यू आर सो पॉपुलर, आई एम ऑल्सो वन ऑफ योर सब्सक्राइबर नाउ. हाँ तो ऐसे हो जाता है. एंड समटाइम्स क्या होता है ना सबसे ज़्यादा जब हम शॉपिंग करने गए हुए होते हैं तो कुछ खा रहे होते हैं वो बड़ा ना एम्बैरेसिंग लगता है. कोई आ जाता है अभी हम ऐसे टिक्की खा रहे थे कई बार तो वही वापस टिक्की खा रहे हो टिक्की नहीं खाई. मैंने कहा हाँ वो मेरे थोड़ा हो जाता है. एक बार ऐसे मेट्रो में हमें एक ना सब्सक्राइबर्स मिले थे तो दे वर अ फैमिली. मुझे याद है हम कहीं जा रहे थे एंड दे वर कॉन्स्टेंटली वो वीडियो देखे जा रहे हैं मतलब सामने देखे मतलब ऐसा होता है फोन में लगे रहते हैं फिर हमको देखेंगे फिर देखेंगे फिर देखेंगे फिर यूँ करेंगे फिर दोबारा देखेंगे फिर छोड़ देंगे. हाँ उनको लगता है मतलब काफी लोग ना आसपास के उनको लगता है हम यहाँ रहते ही नहीं है. उनको लगता है कि मतलब जैसे कोई मिलता है ऐसे आ गए हो बस. हाँ उनको लगता है कि हम नहीं है कोई और है तो वो ना कभी बात ही नहीं कर पाते हैं. जैसे ना वो उस दिन मेट्रो में ऐसे ही हुआ फिर ना हम उतर गए नहीं पापा ये तो वही थे और ये तो मेट्रो के गेट फिर मेट्रो के गेट बंद हो गए. तो फिर वो हमको देखते रह गए. हमें भी लगा मन था बात करेगा बट दे वर नॉट वेरी श्योर. उनको यकीन ही नहीं हो रहा. हम भी देख रहे थे अभी आएंगे आएंगे एक्सपेक्ट हम तैयार थे थोड़ा फोटो खिंचाएंगे. सो गाइस मैं तो बहुत लकी हूँ. मैं पहले से ही जानती हूँ इन लोगों को. जब मन करे फोटो खिंचवाओ ठीक है ऑटोग्राफ लो. सो अच्छा लगता है ऐसे ना कि आप जिनको बचपन से जानते हो ऑलमोस्ट वी वर वेरी स्मॉल या व्हेन वी लाइक स्टार्टेड नोइंग ईच अदर एंड नाउ
you know, they are known faces, they are so famous, people look at them and you know they inspire others also in so many ways, right? अच्छा guys, एक और question मुझे पूछना है जो बहुत टाइम से मैं पूछना चाह रही थी कि एक आधी वीडियो में भी मैंने आपको देखी कि आप लोग को प्रपोजल्स वगैरह भी आते हैं, ऐसा कुछ है क्या? लाइक आर गाइस आफ्टर यू कि बब्बो का प्रपोजल कि मुझसे शादी करें, ऐसा कुछ है क्या? बताती समथिंग हूँ तो ना कमेंट्स आते हैं। देखो इन जनरल मतलब वही है ना, अब आप यूट्यूब पे या आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में यू नो शोइंग योर डेली लाइफ एंड मेकिंग कंटेंट, तो यू विल गेट एवरी सॉर्ट ऑफ कमेंट्स। कभी कमेंट्स तो बहुत नेगेटिव होते हैं, लाइक व्हाई आर यू लाइक डूइंग दिस एंड दैट, लाइक पीपल पिन पॉइंट वाले भी होते हैं, काफी अप्रिशिएटिंग भी होते हैं कि लाइक यू आर डूइंग गुड, गो गर्ल, गुड टाइप ऑफ। कभी ऐसे भी होते हैं कि आप कितने वर्ष की हैं। मतलब मेरे लिए तो छोड़ो भाई, हाय सृष्टि, आई एम इन क्लास 11, आई लव यू सो मच, और वो ना हम जनरली हम डिलीट कर देते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है ऐसे। मतलब लोग तो लिख देते हैं, पता नहीं है वो फैन बेस होगी। जैसे हम भी अगर हमें कोई पॉपुलर एक्टर लगता है तो यार मुझे तो इसी से शादी करनी है, हो जाता है। अच्छा तो लगता हम है, भी थोड़े स्मॉल right, हम भी right, कर लेते हैं, right, तो मे बी उस इंटेंशन से, गलत इंटेंशन से तो नहीं, बट हाँ पीपल लाइक डू राइट सच सॉर्ट ऑफ थिंग्स कि हाँ अच्छा। प्रपोजल टाइप ऑफ, अच्छा। इसके लिए भी लिखते हैं। चलो गाइस, तो रिश्ते ढूंढने की तो टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है और चटपट इन सब की शादी हो जाएगी जब इनकी होनी होगी। आई एम श्योर बब्बू शायद गुड न्यूज़ दे। आई डोंट नो मुझे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, बट गाइज आई एम योर साइड ऑल्सो। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं कुछ ऐसे ही क्वेश्चन मतलब सेफ साइड खेलूँगी जिसमें बब्बू आसानी से आंसर दे दे और सब कुछ बस ठीक है। बट हाँ, कुछ ऐसी न्यूज़ भी आनी चाहिए ना, ताकि आपको भी पता चले कि हाँ देयर इज समथिंग एक्साइटिंग। सो मे बी यू नो बब्बू इज प्लानिंग टू गेट सेटल्ड और दिस लाइक कैन वी एक्सपेक्ट सम गुड न्यूज़ समथिंग, कुछ ऐसा है? अब तो लड़की हमारी बड़ी हो गई है, ऐसा कुछ ऐसा है। और मैं गाइस, मेरी शादी हो गई है ना, तब से मुझे है कि सबकी शादी करानी है मुझे, सबकी। मैं ही क्यों अकेले रहूं शादीशुदा, सबको टैग मिलना चाहिए शादीशुदा का। So yeah, Babu, what about that? कुछ तो बोलना चाहोगे? Is it on your mind? Like, are you planning to get settled? Is it on your mind? Yes, and I don't know, पता नहीं। बट हाँ मतलब देखो अब अभी इतने बड़े हो गए हो। हाँ इतने रिस्पॉन्सिबल तो हो गए कि अब बहुत बड़े हो गए हैं, है। ज़्यादा ही बड़े हो गए हैं। मतलब आई थिंक इतने रिस्पॉन्सिबल तो अब हो गए कि वी शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट नेक्स्ट चैप्टर इन योर लाइफ, बिकॉज ऑब्वियसली देयर इज अ टाइम टू एवरीथिंग। जैसे आपकी Right, स्टडीज, एजुकेशन, आप मतलब यू कैन नॉट थिंक ऑफ कि आप 40 इयर्स में स्कूल जाके करोगे। हाँ। आई एम नॉट सेइंग देयर इज समथिंग रॉन्ग, बट Right, देयर right, इज right. यू नो देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग। So yeah, maybe in coming 2-3 years, I would also give you some good news. Okay. That's what I can say. Okay, that's great. That's great. Okay. Also, Babu, आपके चैनल जैसे ये चल रहा है मतलब अभी थापा सिस्टर्स, आपको कुछ और प्लान है कि इसके साथ आप कुछ और भी इंट्रोड्यूस करना चाहोगे? कोई और चैनल, किसी और चैनल पे आप काम करना चाहोगे, या आपका भी फोकस सिर्फ इसी पे ही है थापा सिस्टर्स पे? या कभी होता है कि आप अपना इंडिविजुअली भी कुछ रन करना चाहो, या सिर्फ अपने पे ही फोकस करके, या किसी और इंटरेस्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट को आप कवर करना चाहो? कुछ ऐसा है आपके माइंड में? I'm sure टाइम तो नहीं है। मेन रीजन वही है, टाइम इसका एक्चुअली हमने सोचा था कि आजकल यूट्यूब शॉर्ट्स काफी पॉपुलर हो रहे हैं, तो एक चैनल यूट्यूब शॉर्ट्स का बना लिया जाए। एंड पीपल वर सजेस्टिंग ऑल्सो कि लाइक मतलब यूट्यूब शॉर्ट्स आप बनाओ, अगर आप फुल लेंथ वीडियो नहीं बना सकते तो शॉर्ट्स है 30 सेकेंड, तो वैसा कुछ डालो। बट यू नो वो होता 30 सेकेंड का है, बट एफर्ट्स पूरा लगता है। तो यू नो गोइंग जंपिंग ऑन टू अनदर थिंग, आई फील कि अभी के लिए Because they need to edit it also and upload it and everything takes and make it creative also, no? You cannot post anything. तो वही है कि आई थिंक फॉर द मोमेंट लाइक आई वुड लाइक टू स्टिक टू दिस चैनल एंड लाइक डू वॉट एवर बेस्ट आई कैन डू फॉर द टाइम बीइंग। ओके, और हमारी थर्ड धाबा सिस्टर कहाँ है? क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या अभी वो है ये वो बाहर गए हैं? ओके, शी आल्सो हैज हर ओन चैनल। हाँ राइट, हाँ, शी तो- पेंट्स गाइस, राइट? शी इज Yeah. पेंटिंग। She is into art basically, so painting and all stuff. तो मतलब she has gone to shoot some of her videos. Okay. वो भी ऐसे बाहर ही आउटडोर ही करती है, जो भी करती है। Okay, तो okay. मोस्टली इसीलिए हमारे चैनल में दिखती भी कम है। ओके ओके, सो एक लास्ट क्वेश्चन और पूछूंगी। आप लोग मतलब जॉब के अलावा जो और आप अपनी पढ़ाई के अलावा यू मेक कंटेंट, उसके अलावा कोई ऐसी हॉबी है जो आप परस्यू करते हैं या आपको अच्छा लगता है, आप टाइम निकालते हैं? लाइक
what else do you do other than just your job, your regular studies and this YouTube channel? और क्या पसंद है तो आपको? मुझे भी नहीं पता। मुझे तो डांस करने का शौक था, खाने है पर करती नहीं है, बोलती हूँ क्लासेस लगवाने करती नहीं है। क्यों टाइम नहीं मिलता? स्कूल से पढ़ाई का आके भी थक pressure जाते होता है। हैं, फिर होमवर्क करो, ये करो, वो करो। पर ये सारे डांस स्टेप कॉपी कर सकते हैं। मतलब हाँ। जो देखती है 2 सेकंड में कर लेती है। एक दिन इसके डांस का ब्लॉग बनाना। हाँ, अरे हम एक दोनों दिन डांस एक दिन डांस तीन कॉम्पिटिशन। हाँ, पक्का अरे, डांस। आरती दीदी ने, मैं जिनको नहीं पता, आरती दीदी ने अपने कॉलेज में वो कौन सा गाना था, मुड़ के तू जी ले, वो डांस किया था ग्रीन कलर के कपड़े पहन के, और मैं पागल हो गई थी। उन्होंने कहा कौन ऐसे डांस कर सकता है। उस टाइम में वो बहुत फैंसी सा लगता था। आई नो, हमने वो स्कर्ट पहनी थी, वो कॉलेज फेस्ट था, नहीं पार्टिसिपेटेड। तुम आए थे, साधना तो थी। मैंने वीडियो देखे थे, वीडियो देखे थे। हाँ, हाँ। मैं तब बहुत छोटी थी, मतलब 7th-8th क्लास में थी। तो मतलब ऐसे लगता है ना यार, कोई इतना प्रोफेशनली कैसे डांस करता है, तो बहुत अच्छा लगता है उस टाइम पे ना। हाँ, right, और उस right. टाइम ये चीजें उतनी कॉमन भी नहीं थी जितनी अब कॉमन है। अब तो लाइक पीपल हैव फोन, तो दे जस्ट प्ले हाँ। म्यूजिक एंड We डांस। lived a very simple life, yeah, without phone and हाँ। very simple life. तो उस टाइम तो ऐसी कुछ थोड़ा सा भी देख लेना तो was a big thing, Big right? thing है। आजकल तो concerts, live events और सब common है, सब बहुत it's common है। everywhere. So Babu, what do you do? Do you find time for your hobbies or something which you like, which interests you? तो मेरा इंटरेस्ट वैसे म्यूजिक में रहा है पहले से ही। तो बीच बीच में आई डू सिंग, आई डू थोड़ा बहुत प्रैक्टिस, हाँ। एंड मैंने 2 इंस्ट्रूमेंट्स भी खरीदे हैं। हाँ, she sings well, guys. She has a melodious voice. बट वही है कि मुझे वो इंस्ट्रूमेंट सीखने का टाइम नहीं मिल रहा है। तो ये टाइम इज एन इशू फॉर Yes, श्योर। yes. बट हाँ, म्यूजिक कह सकते हैं कि इट्स माय इंटरेस्ट। Okay, so 2 लाइन कुछ गाना चाहेंगे please. please, please, please 2 लाइन. I'm sure audience will love it. कुछ भी 2 लाइन. बताओ, गाना बताओ। कोई भी जो तुम्हें आजकल जो तुम्हारी प्लेलिस्ट में है. तू आता है सीने में, जब जब सांसें भरती हूँ, तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरती हूँ। हवा के जैसे चलता है तू, मैं रेत जैसी उड़ती हूँ। कौन तुझे यूँ प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। बस So that was really beautiful, yeah. And you sing very well. Professional singer होना चाहिए. मतलब देखो ऐसे होते हैं मल्टी टैलेंटेड लोग. एक लास्ट क्वेश्चन और पप्पू, जो मुझसे पूछा था किसी ने. आप सौरभ जोशी को भी जानते हैं, राइट? तो सौरभ जोशी की वीडियो में आपको देखा होगा, एंड somehow like एक लिंक जो ऑडियंस बना लेती है. So how do you guys know सौरभ जोशी? ओके, तो सौरभ से हम जब फर्स्ट टाइम मिले थे, मतलब मेरी जब उससे फर्स्ट टाइम बात हुई थी, तो दैट वाज ड्यूरिंग कोविड। Okay. कोविड लाइक पीक कोविड Okay. 2021। Okay. तो उसके पहले मतलब he was known to my sister because they used to do art They're together. good friends. Yeah, so they were connected like from He also long paints back. and all? Yeah, he was also into art. Okay. So उसका पहले आर्ट चैनल ही था, तो उसके थ्रू he knew my sister because my sister was in one of the best art colleges in India. So like they got along with each other, knowing like painting and all similar interest. तो उन्होंने मतलब साथ में सीखा, like my ऐसे कुछ था। तो वहाँ से मतलब they got along, तो फिर वो हमारे घर भी आने वाला था बीच में, like because that time he was not a vlogger. He was not a vlogger at that time. Okay. Yeah, जब वो मेरी बहन से मिला था तो he was not a vlogger. He had a channel which was an art channel. Okay. तो वो आर्ट चैनल पे अपना वीडियोस वगैरह बनाता था, तो ट्यूटोरियल डालता था। तो मेरी बहन ने भी वहीं से मतलब काफ़ी कुछ चीज़ें पिक करी मतलब। Okay. एंड देन शी गॉट इनटू वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस Okay. and he discontinued his art, then he focused on his vlogging. So my sister used to talk about him that कि like I have a friend, he's now doing vlogging. उस टाइम में पता ही नहीं था vlogging क्या होता है, because तब कुछ नहीं पता था, और I तब know. उसको मतलब इतना शायद उसका चैनल भी नहीं था, और मतलब इट वॉज नॉट नोन टू अस। और उसके बाद फिर ये हुआ था कि उनको एक बार दिल्ली आना था, तो दिल्ली आए थे, तो देन ही केम टू आवर हाउस, एंड उसके बाद उसका एक गाना भी वहाँ पे लॉन्च हुआ था, तो ही केम टू दिल्ली। तो हम फर्स्ट टाइम तभी मिले थे, एंड
एंड उसके बाद ही डिड म्यूजिक वीडियो विद माय सिस्टर, तो फिर अब तो मिलना वैसे होता है। सो गाइस दे आर सेलिब्रिटी, इनकी जो सिस्टर है द अदर थापा सिस्टर, उन्होंने तो सौरभ जोशी के साथ वीडियो की है एंड दैट वीडियो इज सो पॉपुलर, यू कैन चेक इट आउट ऑन यूट्यूब एंड एवरीवेयर, आई थिंक इट्स एवरीवेयर लाइक ऑन ईच एंड एवरी प्लेटफॉर्म, म्यूजिक प्लेटफॉर्म। सो गाइज बस लेट्स कॉल इट अ रैप। अभी मेरे पास बस बकेट लिस्ट में यही क्वेश्चंस थे, फिर कभी अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लगा तो फिर हम ये Q&A वीडियो करेंगे, देन आई विल आस्क सम कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस व्हिच विल मेक देम दामा सिस्टर एक्सपोज, फिर आरती दी लिखेगी दामा सिस्टर एक्सपोज, फिर ये मुझे अपने घर नहीं बुलाएंगे कभी। सो गाइज लेट्स कॉल इट अ रैप। अभी हमें बाहर भी निकलना है छत पे, वी आर ऑलरेडी वेरी लेट एंड वी हैव टू कम बैक ऑल्सो। सो लेट्स जस्ट रैप इट अप ओवर हियर एंड हम लोग नेक्स्ट जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन पे जहाँ हम कैफ़े जाने का प्लान कर रहे हैं, एंड देन विल स्टार्ट व्लॉगिंग देयर। ओके चल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? गाइज आई एम रियली सॉरी फॉर बीइंग MIA लास्ट वीक, nonetheless आई एम बैक हियर शूटिंग इंटरेस्टिंग कंटेंट फॉर यू गाइज, many much more to come. So guys, आपने टाइटल से गैस ही कर लिया होगा कि इस वीडियो में मैं किस बारे में बात करना चाह रही हूँ, द टॉपिक दैट आई वुड बी एड्रेसिंग, what I would be discussing in this video with you guys. Also मैंने सोचा उसके साथ मैं अपना स्किन केयर रिचुअल क्लब कर दूँ ताकि आपको कुछ और एक्स्ट्रा जानने को मिले, and that might also help you in this summer season. So guys, what are we waiting for? I'm very excited to discuss everything with you guys and to show you guys my skincare ritual. So let's get started and dive into the video. So guys, this video is going to prove really important for all the girls out there who have recently gotten married or who are planning to get married. So guys, brushing aside all the irrelevant topics of discussions around marriage, like शादी के बाद you will be loaded with responsibilities, you'll not be able to continue with your lifestyle, exercise करना तो भूल ही जाओ, जिम जाना भूल जाओ and stuff, आपको कुकिंग करना होगा, आपको ये करना होगा, वो करना होगा. So people used to scare me, and I like now at this point in time I feel it's irrelevant to a large extent. So guys, here I'm talking about you only, about your individuality, your lifestyle with respect to your skincare and hair care ritual. So guys, मेक श्योर जो आप अपना स्किन केयर रिचुअल शादी से पहले फॉलो करते थे वही शादी के बाद भी फॉलो करें. डोंट इंक्लूड एनी मेजर चेंज इन टर्म्स ऑफ यूजिंग प्रोडक्ट्स. Don't be experimental. Don't switch to new brands or new range of products while following your skincare ritual or hair care ritual, because जो रिजल्ट आप एक्सपेक्ट करेंगे वो शायद आपको ना मिले, and it might prove otherwise. Can you see tiny little bumps over my skin? I don't know if it is like visible in the camera or not. Here it's like tiny little bumps. Here also, like somewhere here around my neckline. So guys, what happens after marriage is that, I mean, everybody will have every girl will have her own journey after marriage. Like depend करता है आप कौन सी फैमिली में जा रहे हैं, आप कौन सी जगह जा रहे हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, वेदर कंडीशन एंड वाटर, like quality of water also matters a lot guys, like trust me. Maybe मुझे ऐसा लग रहा है वहाँ पे after marriage जो पानी है वो मुझे सूट नहीं कर रहा है, and hence I am developing these tiny little bumps. मेरा hair fall भी थोड़ा ज़्यादा हो गया था. There could be many reasons. I have not consulted any dermatologist for that. I am giving some time to my skin to breathe, to relax, and not putting anything extra over my skin, keeping it absolutely simple and keeping it absolutely simple for my hair as well. Not applying any chemicals on my hair. अभी guys मैंने एक शैम्पू यूज़ किया था L'Oreal का Prolonger, और भी एक दो शैम्पू यूज़ किए थे. दो I mean they are
they are very good in the market, they are very popular in the marketplace, professionals उसको refer करते हैं, but since I'm used to using only Ayurvedic and herbal products, that's why I think it induced a lot of hair fall. Now I've switched to some other like range of product which is like helping my hair to grow and to combat hair fall. Other than that guys, यहाँ मैं स्किन केयर की बात कर रही हूँ. So guys, शादी से कुछ टाइम पहले और शादी के बाद जो भी प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते आ रहे हैं आप वही यूज़ करिए. आप ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल मत बनिए. शादी के बाद सेटल डाउन हो जाइए. गिव योर सेल्फ अ कपल ऑफ मंथ्स, एटलीस्ट 6 months टू एडजस्ट इन द एनवायरनमेंट, टू सेटल डाउन एंड टू सी कि आप वहाँ का हवा पानी जो कहते हैं ना आपको सूट कर रहा है या नहीं. And after a year or so, if you want to experiment or if you want to switch to another range of products, then you might do so. Feel free to do so, but don't do it so quickly. Give yourself enough time to adjust, because your body also needs some time to tune into a new environment, right? So guys, other than discussing about life after marriage, let's start with the skincare ritual as well. So guys, I'm still using this face cleanser from Karma Ayurveda during summers. So guys, this is rose and jasmine face cleanser. It it makes you feel refreshed. It takes off all the excess oil secretion from your skin. जो T-zone oily हो जाता है उसके लिए काफ़ी helpful है. और at the same time आपकी skin hydrated रहती है, nourished रहती है, and it glows. So guys, I'll use this. I'll wet my face, and after that I'll use a few pumps and apply it all over my face. So guys, मैंने कुछ पम्प्स लिए हैं. ज़्यादा भी नहीं लेना आपको, इतना लेना है कि आप अच्छे से अपने फेस को वॉश कर पाएँ. टाइनी लिटिल कॉर्नर्स जो होते हैं अराउंड योर नोज, अराउंड योर चिन, योर लिप्स, आप अच्छे से रब करके एंड सिंपली वॉश इट ऑफ. सो गाइज, अपने फेस को अच्छे से वॉश करने के बाद क्लीन टाल से आप वाइप ऑफ कर लेंगे. थोड़ा सा ड्राई होने के बाद ही आई अप्लाई द टोनर. So guys, I was talking about life after marriage and how you can take care of your skin. So the most important tip that I'm going to be giving over here is that don't complicate your skincare ritual. जो products आप शादी से पहले यूज़ करें वही यूज़ करिए. चाहे कितने ही फैंसी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स आए या कोई भी कितना एक्सपेंसिव ब्रांड हो, आप अपने स्किन केयर रिचुअल में कोई भी चेंजेस नहीं लेके आएंगे until and unless it is suggested by your dermatologist. नंबर 2 गाइज, अगर आपको कोई चेंज लेके भी आना है या कोई एक्सपेरिमेंट करना है, यू स्विच टू होम केयर रेमेडीज विच आर लाइक extremely and always useful. They have short results. Like you can probably like what I do is I take a slice of tomato and rub it over my face. I take a slice of cucumber, rub it over my face, or maybe take an ice cube and rub it over my face. So these are all the small things that you can incorporate to make your skin feel healthy, to rejuvenate your skin and to get the natural glow back. मुल्तानी मिट्टी जैसे आप लगा सकते हैं, इस तरीके से चंदन पाउडर आप लगा सकते हैं. सो होम केयर रेमेडीज प्रूव टू बी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल. उसके अलावा गाइस, नंबर 3 जो मैं आपको टिप देना चाहूँगी वो ये है कि आप अपना जो आपका लाइफस्टाइल शादी से पहले रहा है वही लाइफस्टाइल रखिए. अपने खाने पीने में मेजर चेंजेस मत लेके आइए. फॉर एग्जांपल, मैं घर का खाना खाना पसंद करती हूँ. दाल चावल सब्ज़ी रोटी, फ्रूट्स, सैलड. सो गाइस, मेरा यही रूटीन रहा है, वही रूटीन मेरा यहाँ भी है. मैं बाहर का ऑयली या बाहर का खाना खाना पसंद नहीं करती हूँ. वेरी रेयर, जब हम किसी पार्टी में या कहीं बाहर फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं. अदरवाइज़ आई प्रेफर घर का खाना. सो ये एडवाइस मैं आपको भी देना चाहूँगी. राइट गाइस, नंबर 4, अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती है लाइक हेयर फॉल होता है या आपकी स्किन, इफ़ योर स्किन इज़ गोइंग थ्रू अ बैड फेज, देन आप पैनिक मत करिए. Allow it to breathe, give it some time to relax.
don't put anything extra on your skin. उससे क्या होगा, your skin might get choked and become even more unhealthy. So keep it very very simple. You can even reduce the number of steps जो आप अपने स्किन केयर रिचुअल में यूज़ करते हैं, तो उस स्टेप्स को भी कम कर दीजिए. और जितना हो, keep it very very simple guys. And the last important tip that I'll give over here is that sleep well, right guys? No matter like what you do, you're working out, you're eating right, but if you're not sleeping well, your skin will not be able to feel healthy. You will have dark circles, you will have loose sagging skin, which I'm sure आप नहीं चाहेंगे. तो enough sleep लेना बहुत ज़रूरी है. For you it could be like 6 hours. For someone else it could be like 7 hours. For me it could be like 8 hours. So complete your sleep cycle so that you feel healthy from within. If you feel healthy from within, your skin will automatically start showing the result. So guys, now that my skin has become dry, I'll apply a few pumps of this toner from Karma Ayurveda. Guys, this is pure vetiver water toner. थोड़ा बहुत भी जो ड्राइनेस रहता है फेस वॉश करने के बाद वो इससे दूर हो जाता है. आपके pH लेवल, आपकी स्किन के pH लेवल को ये रिस्टोर करता है, बैलेंस करता है, आपकी स्किन को नरिश करता है और आपके माइंड को भी रिफ्रेश करता है गाइस. हेंस आई एम अप्लाइंग अ फ्यू पम्प्स. इसके बाद गाइस, वंस इट इज सेटल डाउन, उसके बाद आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप. So guys, now that the toner has settled down in my skin, I'll move on to the next step, which is applying a vitamin C serum. Guys, मेरा जो डे टाइम और नाइट टाइम रूटीन होता है more or less the same होता है. It's just the cream that changes day time cream and night time cream. Guys, अभी summers है, as I told you, and I don't believe in complicating the skincare regime. तो मैं अभी कुछ एक्स्ट्रा अप्लाई नहीं कर रही हूँ. स्किन टेक्सचर ऑलरेडी बहुत ऑयली हो जाता है, तो समटाइम्स आई अप्लाई अ नाइट क्रीम एंड समटाइम्स आई डू नॉट. सो गाइज, सिंस इट्स नाइट टाइम, I am reframing. I'm not using this vitamin C serum. Vitamin C serum, guys, you must have seen a lot of videos around this कि ये कितना important होता है आपकी स्किन के लिए. It is a powerful antidote to combat that. So आपकी like pigmentation, hyperpigmentation, कोई भी डार्क स्पॉट आपकी स्किन में होता है, उसको टैकल करने में हेल्प करता है. सो गाइज, अभी लाइक दीज डेज मैंने जैसे कि आपको बोला, आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना है. मैं पहले क्लेयर्स का यूज़ करती थी, बट इसके रिव्यूज़ पढ़ के मैंने पिक्सी का विटामिन सी टोनर मंगाया, विच आई एम नॉट लाइक रियली इम्प्रेस्ड विद. बट हैविंग सेड दैट, समर्स के लिए इट इज़ अ वेरी लाइट वेट सीरम. सो आपकी स्किन ईजिली इसको एब्जॉर्ब कर लेती है. क्लेयर्स का थोड़ा सा हैवी हो जाता है. सो अलर्ट माइंड यू गाइज, those who have like already those who are oily skin girls, आप summers में avoid करिए क्लेयर्स का विटामिन सी सीरम, या जो सीरम काफ़ी थिक होता है वो आप अवॉइड करिए. इट माइट ब्लॉक योर पोर्स एंड माइट गिव यू एक्नेस. सो गाइज, ये बहुत ही लाइट वेट होता है. यू कैन ट्राई दिस, एंड दो आई एम नॉट वेरी इम्प्रेस्ड. अभी नाइट टाइम है तो मैं इसको यूज़ नहीं करूँगी, मैं डे टाइम में इसको यूज़ करती हूँ. इसके बाद गाइस, सीरम लगाने के बाद आई यूज़ दिस फेस क्रीम. सो गाइस, समर्स में मैं वाटर बेस्ड जेल बेस्ड क्रीम प्रेफर करती हूँ. दिस इज़ फ्रॉम न्यूट्रोजेना हाइड्रो बूस्ट फेशियल जेल क्रीम. गाइस, दिस इज़ क्वाइट लाइक योर क्लिनिक. अगर मैं हाई रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो यू हैव योर बिलीफ, यू हैव योर क्लिनिक. सो अगर आप उस बजट में नहीं जाना चाहते हैं और उससे कम बजट में रह के उसी के लेवल की कोई अच्छा फेस क्रीम आप बाय करना चाहते हैं, देन दिस इज़ द वन फॉर यू. न्यूट्रोजेना क्रीम बहुत ही अच्छी है गाइस. इसका टेक्सचर बहुत ही लाइट वेट है. इट ईजिली ब्लेंड्स इन योर स्किन. आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता. In 3 simple steps में you're good to go. Don't forget to apply sunblock cream guys, that is also very important. So guys, अभी night time है तो मैं cream नहीं लगाऊंगी. I will not layer my skin with too much of products. I'll probably sleep off after applying this sheet mask. This is guys from Tony Moly.
गाइज ये टोनी मोली, ये पिक्सी का है। टोनी मोली के शीट मास्क बहुत अच्छे हैं। सो गाइज आई गॉट माई हैंड्स ऑन दिस पर्ल मास्क शीट ब्राइटनिंग। गाइज नाइट टाइम जो होता है उसमें आपकी स्किन रिलैक्स करती है बिकॉज यू गो टू स्लीप। डे टाइम में थोड़ा सा हासिल होता है, राइट, यू मूविंग टू एंड फ्रो। अगर आप घर में भी होते हैं, इवन इफ यू आर यू टेक केयर ऑफ द हाउस, योर होम मेकर, इवन देन अगर आप डे टाइम में शीट मास्क अप्लाई करते हैं तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं मिलता जितना नाइट टाइम में मिलता है, बिकॉज दैट्स द बेस्ट टाइम व्हेन यू गो टू स्लीप, योर माइंड रिलैक्सेस। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हेन योर माइंड रिलैक्सेस, योर बॉडी ऑल्सो रिलैक्सेस, right? If your body is relaxing, then your skin is also relaxing, right? So also guys, in the end, while calling it a wrap, I would like to mention that don't worry, I would like to congratulate you if you're already married or you're going to get married. Don't worry, if your partner is very understanding, your marriage life will be like full of all blessings and love and care and all the warmth. Guys, so आपको just थोड़ा सा बैलेंस आउट करना आना चाहिए. Never compromise, never ever compromise on what you want, because in the end what will happen, you will feel frustrated, you will not be happy from within. It's very important to keep yourself happy, so do what makes you happy. अगर आपका मन है बाहर घूमने जाने का तो आप घूमने जाइए. If you want to catch up with your friends, do catch up with your friends. If you want to spend good time at home with your in-laws, with your husband, do so. Listen, the bottom line is that listen to yourself, listen to your inner self. What does it say? Don't complicate things in life, keep it simple. अगर आप जितना simple रखेंगे चीज़ें उतनी ही ज़्यादा sorted रहेंगी और आपके लिए अच्छा रहेगा. So guys, on this note, take good care of yourself, and until I see you next time, keep smiling. Lots of blessings on your way. Love yourself, eat healthy, drink lots of water, love animals, love your family, and I'm going to see you very, very soon. Take care. Bye-bye. Wait guys, before you go away, one last important tip that I would like to give you over here is that don't forget your lips. मैं एक लिप बाम हमेशा हैंडी रखती हूँ. Either I keep it in my bag or in my pocket, wherever I go. But रात में guys, जब भी कोई लिप बाम यूज़ करे वो हमेशा कलरलेस हो, पिगमेंटेड ना हो, because the only job it has to serve is to hydrate, is to nourish your chapped lips. So एक कलरलेस लिप बाम जो होता है वो जॉब ज़्यादा इफेक्टिवली फुलफिल करता है with comparison to a pigmented lip balm. So guys, for that matter, the one that I have currently is this Nivea lip balm. और इसके अलावा जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो है Laneige का Sleep Beauty Lip Mask, and the other one is from Kama Ayurveda. So guys, ये दो लिप बाम मेरे utmost favorite हैं. You can buy them too and get the most of it. So guys, that was the last tip for you guys. Good night, take good care of yourself, and I'm gonna see you very, very soon. Bye bye. Make it on a rope, go along for the ride, till the stars just follow. You and I, so the